ओके, सो आज की क्लास में हम लोग हाइट एंड डिस्टेंस के बारे में पढ़ाई करेंगे। और हाइट एंड डिस्टेंस इज नेम्ड एज एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री in your book. So as usual, there will be two approaches. Approach number one will be the approach by which you have to solve your question in your board exam. Approach number two will be the approach by which you have to solve the question in your exam, in your competitive exam. And there will be a general approach also. उससे पहले हम बात कर ले कि हाइट एंड डिस्टेंस बेसिकली क्या है, ये हम यहाँ पे क्या पढ़ने जा रहे हैं। देखो, आप अपने घर पे खड़े, आप अपने घर पे अपने कमरे में बैठे हो, आपके कमरे में आपके ठीक सामने एक बॉल है या मेरे ठीक पीछे एक बॉल है। अब मुझे इस पॉइंट पे जहां पे मैं बैठा हुआ हूँ, यहां से मुझे बैठ के इस वॉल की हाइट को कैलकुलेट करना है। नाउ दिस इज माय टास्क। अब यहाँ पे मैं दो एंगल्स को डिफाइन करता हूँ। एक एंगल होता है the angle by which I am seeing the object, angle of elevation, and the other angle is angle of deviation. Angle of elevation and angle of deviation. अब ये चीजें क्या होती हैं, इसको समझने की कोशिश करते हैं। So let us try to understand this. देखो, these are some theoretical stuff that one of the uses of trigonometry is to find the height of object and distance between the point without measuring these height and distance. हम लोग जो है किसी भी ऑब्जेक्ट का की हाइट या फिर दो पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस अपन कैलकुलेट करेंगे without actually measuring the two things. So without actually measuring these things, we will calculate the height and the distance. तो अब अपन कैसे करेंगे? सपोज करो यहाँ पे कोई बहुत बड़ी बिल्डिंग, ठीक है, दिस इज अ बिल्डिंग जिसकी हाइट मुझे नहीं है। यहाँ पे एक आदमी बैठा हुआ है, there is a man here. We consider the man as point object unless and otherwise stated that the height of man is this much. We consider the man as point object. ठीक है। अब यहाँ से आप इस आदमी को देख रहे हैं, आपको ये पता है कि आपका जो डिस्टेंस है इस बिल्डिंग से, that is d. This value of d you are. अब जब आप यहाँ से इस बिल्डिंग को देखोगे, ये बिल्डिंग का टॉप है, तो जब आप यहाँ से, अब यहाँ पे आप हो, यहाँ पे आपकी कहीं आंख होगी, ठीक है। अब यहाँ से जब आप इस बिल्डिंग को देख रहे हो, तो आपकी आंख से इस बिल्डिंग के टॉप तक का जो एंगल होगा, दैट एंगल इज कॉल्ड एंगल ऑफ एलिवेशन. दिस एंगल इज कॉल्ड एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है। इसको अपन क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ एलिवेशन। और इसको अपन बोलते हैं लाइन ऑफ साइट। इसको अपन बोलते हैं लाइन ऑफ साइट एंड दिस एंगल इज कॉल्ड एंगल ऑफ एलिवेशन। कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि जिस एंगल से आप बिल्डिंग के टॉप को देख रहे हो, ये जो एंगल, और यहाँ से आप कहीं यहाँ पे जमीन पे खड़े हो, तो द एंगल that you are making, that angle is called angle of elevation, and this is not called like, I'm saying my dear friend that the angle by which you are seeing the top of the building, that angle is called angle of elevation, ठीक है। इस एंगल को हम बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन, ये एंगल कुछ होता है 10 डिग्री, 15 डिग्री, 20 डिग्री, 100 डिग्री, 0 से 90 डिग्री के बीच में एंगल कुछ भी हो सकता है। अब यहाँ पे first of all, I will tell you what is the use of trigonometry, how the application of trigonometry comes. अब देखो, ये वाला एंगल आपको पता है, you know that अगर इसको A बोलते हैं, ये B बोलते हैं और ये C है, you know that triangle ABC is a right angle triangle.
So if triangle ABC is a right angle triangle, now we will directly jump to the main point. This is A, this is A, yeah, this is C, this is A, this is B, and this is height H. This height I am required to calculate. और ये जो BC distance है ना, जो कि B है, ये आपको पता है, ये आपको पता है, and ये एंगल आपने मेजर कर लिया with the use of any device, और ये एंगल आपको पता है कि ये this angle is alpha. Now what you will say, you will apply trigonometry. कैसे trigonometry apply करेंगे sir? You know that tan alpha is equal to H upon D. अब D आपको पता है, tan alpha आपको पता है, तो can you calculate H, which will be equal to D multiplied by tan alpha. तो H की वैल्यू होगी मेरी फ्रेंड, that will be nothing but D multiplied by tan alpha. कई बार क्या होता है, तो ये हो गया, इस तरीके से आप बिल्डिंग की हाइट को कैलकुलेट कर सकते हो विदाउट एक्चुअली मेजरिंग द हाइट ऑफ beta, that is called the line of sight, but I'm still not sure about it, so I will tell you that later, because I'm confused whether this is called the line of sight or this line is called the line of sight. That is not much of your concern. That is why I have not written it. Perhaps this line is only called the line of sight, but I don't want to give you any false information. That is why I have not written it. So, अब देखो एक चीज, एक बहुत अच्छी, तो ये तो हो गया हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन. अब हम बात करते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन. ठीक है, एंगल ऑफ डिप्रेशन की अगर हम बात करें तो एंगल ऑफ डिप्रेशन की बात कैसे करेंगे सर? अब आप जो है यहाँ पे बुर्ज खलीफा के टॉप पे खड़े हो, ठीक है, आप जो है यहाँ पे बुर्ज खलीफा के टॉप पे, मैं खड़ा हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे बहुत दूर पे कहीं, बहुत दूर पे कहीं एक गाड़ी आ रही है. सपोज माय फेवरेट स्टूडेंट इज कमिंग, ये उसकी गाड़ी है, एंड आई जस्ट वांट टू नो हाउ मच डिस्टेंस इज ही फ्रॉम मी. मेरे से, यानी कि बुर्ज खलीफा तक पहुंचने में उसको कितना टाइम लगेगा, दैट आई वांट टू कैलकुलेट. हाउ आई विल कैलकुलेट माय डिस्टेंस? जब मैं यहाँ से इसको देखूंगा, जब मैं यहाँ से अपने स्टूडेंट को देख रहा हूँ, ऊपर से नीचे जब मैं देखूंगा, so I will be making some angle with the ground. मैं ग्राउंड से कुछ एंगल को बनाऊंगा, या ये जो है लाइन ऑफ साइट, हाँ, दिस इज कॉल्ड लाइन ऑफ साइट. आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, दिस एंगल इज कॉल्ड लाइन ऑफ साइट, दिस लाइन इज कॉल्ड लाइन. यहाँ से लाइन ऑफ साइट से मैंने एक एंगल बनाया जब मैं उसको देख रहा हूँ, एंड दिस एंगल इज कॉल्ड अल्फा. अब देखो बेटा, एक बात ध्यान से देखो, यहाँ पे सपोज करो दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी, ओके, और ये मान लो दिस इज ई. तो कैन आई से दैट AE और EA इज पैरेलल टू BC. ये जो है वो BC के पैरेलल है. That means ये वाला जो एंगल अल्फा है, the angle that the observer is making with the line of sight, that will be the same angle. ये वाला एंगल भी अल्फा हो जाएगा, because these two lines are parallel. ये दोनों एंगल्स alternate their angles होंगे. So if this angle is alpha, so this angle will also be equal to alpha. और ये मेरे को ऑलरेडी 90 डिग्री दिया हुआ था. Height of Burj Khalifa I know. Now I want to calculate how much time this Mercedes will take to reach this place. So that will be H upon D will be equal to tan alpha, or D will be equal to H upon tan alpha. और स्पीड मुझे पता है, इस गाड़ी, इस व्हीकल की स्पीड मुझे पता है, तो इस डिस्टेंस को मैं स्पीड से जब डिवाइड कर दूंगा, तो आई विल गेट द टाइम that my Burj Khalifa, that my Mercedes will take in reaching to the bottom of this building. So this was one of the application of trigonometry. This was one of the application of this height and distance. कि आप angle of elevation or angle of deviation कैसे calculate करते हो. There are few theoretical things कि हम किस apparatus से measure करते हैं, क्या चीजें हैं, that we will study.
तो अब देखो जो अपन बात कर रहे थे यहाँ पे हॉरिजॉन्टल से if through O, जैसे मान लो किसी पॉइंट कोई पॉइंट है O and O is called the eye of the observer. कोई horizontal line है OX, horizontal line OX that is being made. And if the object P is in the vertical plane, हमारा कोई object P है, वो कहीं पे है कहीं vertical plane में, then angle XOP is called angle of elevation as seen from O if हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो इस तरीके से, अगर मेरा जो रिक्वायर्ड ऑब्जेक्ट है मेरे से ऊपर है, सपोज दिस माय हैंड इज द ग्राउंड और ये मेरा जो ऑब्जेक्ट है ये यहाँ पे कहीं है, तो अब जब मैं अपने हाथ से इस पेन की टिप पे को देखूंगा, दैट एंगल विल कॉल्ड द एंगल ऑफ एलिवेशन. However, अगर वो ऑब्जेक्ट मेरे हाथ से नीचे है, तब जब मैं उसको देखता हूँ किसी भी तरीके से, that will be called as angle of depression. And this line is called the line of sight. Here, this line is called the line of sight. I am extremely sorry for this. This line is called the line of sight. But line of sight won't make any difference in your question. The difference that will be made is by the angle of elevation and angle of elevation. So this line is called the line of sight, not this line. This is not that important. That is why I also do not lay any stress on it. Fine. So line of sight ये हो गया, angle of elevation ये हो गया, angle of deviation ये हो गया. एक क्वेश्चन है, क्योंकि आप लोगों के एग्जाम में अब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी आ रहे हैं, तो एक क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम में आ सकता है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. द इंस्ट्रूमेंट व्हिच इज यूज्ड टू मेजर द एंगल्स इज कॉल्ड क्लाइनोमीटर. नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट, दिस कैन कम इन योर एग्जाम. वो इंस्ट्रूमेंट जिस इंस्ट्रूमेंट से हम लोग एंगल ऑफ एलिवेशन या एंगल ऑफ डिप्रेशन को मेजर करते हैं, उस इंस्ट्रूमेंट को हम लोग क्लाइनोमीटर. ठीक है, ऑब्जेक्टिव पोर्शन है, पूछ सकते हैं, नहीं पूछते हैं तो कोई बात नहीं, पूछ लिया तो बहुत अच्छी बात. अब देखो भाई, क्लाइनोमीटर कुछ इस तरीके से बना होता है, 0 से लेकर 75 और एक साइड में, और 0 से लेकर 75 दूसरे साइड में. दिस इज कॉल्ड द प्लम्ब लाइन. अब यहाँ पे आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या होगा, अगर आपसे पूछा जाए तो क्या पूछ सकते हैं, what is the maximum range of this clinometer? What is the maximum range of this clinometer? जैसे आप लोग जो प्रोटेक्टर पढ़ते हैं जिसको अपन डी भी बोलते हैं, उसकी मैक्सिमम लिमिट क्या होती है, 180 डिग्री होती है ना. इस तरीके से you can be asked what is the maximum range of this clinometer. So that will be 75. तो इस तरीके से this can be an objective question for your exam. This can be an objective question. ठीक है. अब अगेन द एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डेविएशन की अपन फिर से अगर बात कर लें, तो अगर यहाँ पे पेड़ का टॉप है, ठीक है, यहाँ पे पेड़ का टॉप है, आप यहाँ पे खड़े हो, आपको इस एंगल को मेजर करना है, ये हो गया आपका लाइन ऑफ साइट जो आप देख रहे हो. द एंगल व्हिच द लाइन ऑफ साइट is making with the ground, that angle will called as the angle of elevation. क्योंकि आप ऊपर अपने से ऊपर किसी चीज को देख रहे हैं, तो उस एंगल को अपन बोलेंगे एंगल ऑफ एलिवेशन. नेक्स्ट थिंग इज एंगल ऑफ डिप्रेशन. अगेन एंगल ऑफ डिप्रेशन विल बी, आप अपने से नीचे किसी चीज को देख रहे हो, तो लाइन ऑफ साइट से जो अगर आप अपने से नीचे किसी चीज को देख रहे हो, तो हॉरिजॉन्टल के पैरेलल जो लाइन होगी, उससे जो लाइन ऑफ साइट व्हाटएवर एंगल इट इज मेकिंग, दैट एंगल विल बी कॉल्ड एज द एंगल ऑफ डिप्रेशन. सो दिस वाज ऑल अबाउट एंगल ऑफ एलिवेशन एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन. Now we will solve the question, and then we will decide what do we need to know anything about it. बहुत आसान सा टॉपिक है.
बहुत आसान सा टॉपिक है, बहुत सिंपल टॉपिक है। इट इज हार्डली ए टॉपिक ऑफ वन लेक्चर, बहुत ही आसान टॉपिक है। तो इसको अपन अब क्या करेंगे, थियोरेटिकल पार्ट इतना ही था, थ्योरेटिकल पार्ट इतना ही था। जितने भी आप क्वेश्चंस करोगे, द मोर क्वेश्चंस दैट यू विल डू, द मोर परफेक्ट। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को फर्स्ट वन क्वेश्चन आई विल एक्सप्लेन यू, देन आई विल गिव यू सम टूल्स दैट आर नॉट इन एनी वे रिलेटेड टू योर बुक। वो टूल्स आपकी बुक में नहीं दिए हुए हैं, बट दैट टूल्स आर नेसेसरी। अभी तक तो अपन ने पढ़ा था सिर्फ थ्योरेटिकल क्वेश्चन। अब हम बात करेंगे कुछ प्रैक्टिकल चीजों की जो कि आपके क्वेश्चंस को, जो आपके एग्जाम में आएंगे, तो इजीली सॉल्व करने में हेल्प करेंगे। ठीक है, तो वन क्वेश्चन आई विल सॉल्व यू, देन आई विल टेल यू समथिंग जो आपके एग्जाम में, आपके ऑब्जेक्टिव पोर्शन में इट विल टेक केयर ऑफ इट, एंड इट विल आल्सो टेक केयर फॉर द कॉम्पिटिटिव एग्जाम। देखो क्वेश्चन क्या बोलता है, द क्वेश्चन इज सेइंग the angle of elevation of the top of a tower from a place is 360 meter, from a place 360 meters from the base of the tower is 60 degree. Find the height of the tower. आपसे क्वेश्चन ये बोल रहा है, ये टॉप ऑफ द टावर है, आप यहाँ कहीं खड़े हो 360 मीटर्स अवे, आप यहाँ कहीं खड़े हो 360 meters away, and the angle of elevation is 60 degrees. This angle is 60 degrees. Fine. अब आपको मुझे ये बताना है कि what will be the height of the tower. बहुत आसान सी चीज है। अब बेटा यहाँ पे अगर tan 60 की वैल्यू नहीं पता होगी तो ये क्वेश्चन कभी नहीं सॉल्व होगा, याद रखना। तो this is a right angle triangle. So what we will do is h upon 360 degree will be 360 will be equal to tan 60. Tan 60 की वैल्यू कितनी होती है, 1 upon √3. So h upon 360 will be equal to 1 upon √3. So h will be equal to 360 upon √3. ठीक है, यही होगा ना आंसर सर? tan 60 √3। अच्छा √3 होता है, अच्छा √3 होता है, वो मुझे तो पता ही नहीं था। चलो अच्छा है, थैंक यू मुझे याद दिला। ठीक है, तो h upon 360 will be h upon 300, मुझे लगा कि सो गया, h upon 360 will be equal to √3. So h will be equal to 360 multiplied by √3. अब यहाँ पे गिरता है वर्ड लेने की जरूरत नहीं है कि 360 को 1.732 से मल्टीप्लाई करो और उसके बाद सॉल्व करो, नो, नॉट रिक्वायर्ड अनलेस एंड अदरवाइज स्टेटेड। अगर यहाँ पे लिख देता यूज √3 is equal to 1.732, तो बेटा उसके बाद आपको 360 को 1.732 से गुणा करके जो रिजल्ट आता है वो आपको बताना पड़ता है। लेकिन जब यहाँ पे नहीं लिखा है, नो नीड टू डू दैट। ये बात समझ में आ गई सबको कि क्यों हमें नहीं करना चाहिए या कहाँ करना चाहिए, कहाँ नहीं करना चाहिए। We discuss these type of things in similar surface area and volume chapter also. So you are not required to solve this. Fine. अब जो है अब मैं आपको बताऊंगा कि इस क्वेश्चन को ऑब्जेक्टिवली कैसे सॉल्व करें। देखो ध्यान से देखो, जो मैं समझाना चाहता हूँ एकदम ध्यान से देखो। नॉर्मली जो आपके पास केसेस आते हैं, केसेस मतलब नॉट दिस करंट केसेस, करंट तो केस नाम सुन के भी लगता है कुछ कर, तो नॉट दिस करंट केसेस, बट नॉर्मली आपके पास जो डिफरेंट कंडीशंस हैं वो कुछ इस तरीके। एक राइट एंगल ट्रायंगल है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है जहाँ पे ये वाला एंगल 60 डिग्री है, ये वाला एंगल 90 डिग्री है। ऑब्वियसली बात है, ये 60 है, ये 90 है, तो ये वाला एंगल कितना है। अब यहाँ पे या तो आपसे ये वाला डिस्टेंस पूछेंगे या तो आपसे ये वाला डिस्टेंस, और कुछ आपसे ये पूछ नहीं सकते। So what I will do here is I will take the standard case of a right angle triangle. Standard case of a right angle triangle मतलब कहने का मतलब ये है बेटा, मैं एक राइट एंगल एज्यूम करूंगा ABC, जिसमें कि AB will be equal to √3, BC will be equal to 1 and AC will be equal to, मैंने ऐसा एक राइट एंगल ट्रायंगल एज्यूम किया
जिसमें AB इज इक्वल टू √3, BC इज इक्वल टू 1 एंड AC इज इक्वल टू 2। क्यों किया मैं, अब इसको ध्यान से समझो। तो ऐसा जब मैंने किया तो पहले सारी कंडीशंस चेक कर लेते हैं कि इज इट सेटिस्फाइंग और नॉट। तो tan 60 will be equal to AB upon AC, which is nothing but √3/2, and tan 30 will be equal to BC upon AC, which is nothing but 1/2। ठीक है, तो ये यहाँ पे सारी चीजें वैलिड हैं, तो आई एम नॉट दैट रॉन्ग। अब मैं क्या एज्यूम करूंगा, अब मैं एक चीज को यूज करने जा रहा हूँ जिसको हम बोलते हैं स्केल फैक्टर। अब स्केल फैक्टर क्या है? स्केल फैक्टर ये है बेटा कि हमारी जो गिवन कंडीशंस हुई, उन गिवन कंडीशंस को मैं करंट कंडीशन से इस स्टैंडर्ड ट्रायंगल से कंपेयर करूंगा, ठीक है। और उसके बाद मैं उस हिसाब से अपने रिजल्ट्स को मॉडिफिकेशन करूंगा। This I will do objectively, this I will do orally without using pen and paper। कैसे करूंगा सर? मेरे को ये पता है कि जो मेरा ओरिजिनल ट्रायंगल था, उस ट्रायंगल के केस में क्या हुआ था, this BC was 1 and this distance was √3 and this distance was 2। बट अभी जो मेरे पास मॉडिफाइड ट्रायंगल आया है, जो अभी मेरे पास करंट ट्रायंगल आया है, उस ट्रायंगल में ये वाला जो डिस्टेंस है, इट इज 360 मीटर्स फ्रॉम द बेस। ये वाला डिस्टेंस 360 है, ये वाला डिस्टेंस मुझे नहीं पता है। अब एक बात बताओ मुझे, मैं 2 ट्रायंगल्स बना रहा हूँ यहाँ पे, इससे आपका पुराना नॉलेज टेस्ट हो जाएगा कि आप लोगों को पुरानी चीजें याद है। एक ट्रायंगल बनाया ABC और दूसरा ट्रायंगल बनाया मैंने PQR। डोंट गो इनटू दिस बेस लेंथ हियर, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है। दिस एंगल इज 60 डिग्री, दिस एंगल इज 30 डिग्री, दिस एंगल इज 30 डिग्री, दिस एंगल इज 60 डिग्री। कैन आई से ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल PQR? बोल सकता हूँ हाँ या ना, बताना। कैन आई से ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल PQR? Yes, sir. यस सर। अब देखो PQ की लेंथ मेरे को √3 थी और QR की लेंथ मुझे 1 पता है, और ये इस लेंथ की जरूरत नहीं है, आई एम नॉट गोइंग टू कंसीडर। ये लेंथ मेरे को H दी हुई है, निकालना है। This length I know that this is 360 degree, 360. So can I say H upon √3 is equal to 360 upon 1? So H will be equal to 360 √3. क्या मैं ऐसा कह सकता हूँ? H upon √3, ये applying the concept of similar triangles। 60 डिग्री के सामने वाली साइड H, 60 डिग्री के सामने वाली साइड √3। So H upon √3 will be equal to 360 upon 1। 360 कैसा है? एंगल A के सामने वाली साइड 360। 1 कैसा है? एंगल P के सामने वाली साइड। तो H upon √3 is equal to 360 upon 1। So can I say that H is equal to 360 √3? Yes sir, no sir। पहले no sir फिर yes sir, ठीक है। तो I can say that H will be equal to 360 into √3 by applying the concept of similarity। This is what I wanted to tell you, that even in the height and distance question, अगर आपको initial चीजें, if you can visualize कौन सा triangle किसके similar होगा, तो you can directly write the things without even using pen and paper। Now this is a tool which is very much necessary for your NTSC exam। This is a tool which is very much necessary for your NTSC exam। So from now onwards, हम लोग इस टॉपिक में जितने भी क्वेश्चंस करेंगे, we will have 2 approaches। One approach will be the objective approach and another approach will be the subjective approach। ठीक है, चलो। Okay, चलो। Now this question। A man is standing on the deck of a ship which is 8 meters above the water level।
he observes the angle of elevation of the top of a hill as 60 and the angle of depression of the base of the hill as 30 degree. Calculate the distance of the hill from the ship and the height of the hill. You guys have 2 minutes for solving this question. 2 minutes 6 seconds to be more precise. So please start. The question is saying a man is standing on the deck of a ship. एक शिप है, पहले तो पानी बनाते हैं क्योंकि शिप जो है भैया वो तो पानी में तैरेगी, पहले पानी बना देते हैं, पानी के ऊपर एक शिप बनाते हैं और यहाँ पे कहीं एक आदमी खड़ा है, तो we will treat the man as a point object, ठीक है? और जब unless and otherwise हम मैन की हाइट नहीं देंगे तो we will treat the man as a point object. यहाँ पे एक बात हमें ध्यान देने की है कि यहाँ पे ये दिया हुआ है कि the ship is 8 meters above the water level. So this distance is 8 meters. This height is basically 8 meters that we have to take into account. ठीक है, अब इसके बाद क्या बोलता है? From here he observes the top of a hill as 60 degrees. यहाँ से ये एक हिल के टॉप को ऑब्जर्व करता है जहाँ पे हिल होगा, and this angle he is observing as 60 degree. ठीक है सर? And the angle of depression of the base of the hill as 30 degree. हिल के बेस का एंगल ऑफ डिप्रेशन हियर दे आर सेम. which angle will be 30 degree? And the angle of depression of the base of the hill as 30 degree. So which angle will be 30 degree here? Will it be this angle? Or will it be this angle? There are two things here. ये वाला एंगल 30 डिग्री होगा या ये वाला एंगल 30 डिग्री होगा. फर्स्ट ओके, अदर्स कौन सा वाला एंगल 30 डिग्री होगा भाई? फर्स्ट फाइन. सेकेंड वन, एक ने बोला फर्स्ट वन, एक ने बोला सेकेंड वन. राजदीप कौन सा वाला एंगल 30 डिग्री होगा? विल इट बी फर्स्ट वन और विल इट बी सेकेंड वन? The first one will be 30 degree here, क्योंकि यहाँ पे रिफ्लेक्शन की कोई बात ही नहीं हो रही है. सो द फर्स्ट एंगल विल बी 30 डिग्री. ठीक है, फिर से इस क्वेश्चन को करते हैं. यहाँ पे कहीं पानी है, पानी के ऊपर समंदर है, समंदर के ऊपर शिप है, शिप से ये इन्होंने एंगल देखा, ये हिल को देखना है. दिस एंगल इज 60 डिग्री एंड दिस एंगल विल बी, this angle is 30 degree, or you can also say that this angle is 30 degree. क्योंकि ये दोनों लाइंस जो हैं, ये दोनों लाइंस आपस में पैरेलल होगी. तो if this angle is 30 degree, so this angle will be also be 30 degree. मुझे क्या निकालना है? Distance of the hill from the ship and the height of the hill. ठीक है, अब देखो ध्यान से देखना. ये डिस्टेंस मुझे दिया हुआ था, this distance is 8 meters. So my dear friend, अब इतना हो गया, अब ये हो गया. अब यहाँ पे इसके बाद आप चाहो तो आप इस क्वेश्चन को नॉर्मल डायग्राम बना के भी कर सकते हो. So this distance is 8 meters. So this distance is also equal to 8 meters. Agreed? हमें ये पता है कि ये वाला जो एंगल है, that angle will be 90 degree. So can I say 8 upon d will be equal to tan 30, or I will have d is equal to 8 root 3, क्योंकि tan 30 की वैल्यू 1 upon root 3 होती है. That will give me d will be equal to 8 root 3. ये जो डिस्टेंस है that is equal to 8 root 3. The ship is 8 root 3 meters from the hill. 8 root 3 मीटर, किलोमीटर जो भी है. The ship is 8 root 3 meters
फ्रॉम द हिल। अब मुझे हिल की हाइट निकालनी है। So let us assume that this distance is h. Now what I will have, h upon 8 root 3 is equal to tan 60. Tan 60 की वैल्यू होती है बच्चा root 3. So h will be equal to 8 root 3 multiplied by 3 which is equal to 24. h की वैल्यू आ गई 24. लेकिन still this is not the total height of the hill. Total height of the hill will be equal to 8 root 24 plus 8 which is nothing but 32 meters. Total height of the hill will be equal to 32 meters. जो hill की height है वो 32 मीटर है and the hill is 8 root 3 meters from the ship. So the height of hill is 32 meters and the hill is 8 root 3 meters from the ship. I hope this question is clear to everyone. किसी को कोई डाउट है इस क्वेश्चन में? Anybody, any doubt? Please tell me. किसी को कोई डाउट है? चलो, जब किसी को कोई डाउट नहीं है, now we will move to the next question. This is the question. The time that you have is again 2 minutes for solving. No, 2 minutes, 3 minutes for solving this question. The time starts. The question is saying कि एक vertical tower है जो कि horizontal plane पे खड़ा है. आपके एग्जाम में, आपके सिलेबस में सिर्फ और सिर्फ horizontal plane वाले ही क्वेश्चन है. कुछ बुक्स में अपने आप को थोड़ा सा एडवांस डिक्लेयर करने के लिए what they have done is they have given the questions of inclined plane, but inclined plane is not in your syllabus, so please don't do such type of questions. ठीक है, फिर से बोल रहा हूँ, inclined plane के क्वेश्चन जो आएंगे आपको अगर कहीं पे दिखता है किसी बुक में, तो please don't do such type of question. NCERT or CBSE is never going to ask this question. ठीक है. So the question is, a vertical tower is standing on a horizontal plane. बहुत अच्छी बात है. And the tower is surmounted by a vertical flag staff. मतलब टावर के टॉप पे एक फ्लैग स्टाफ, एक झंडा लगा हुआ है और उस झंडे की जो हाइट है वो हाइट है 5 मीटर. ठीक है सर. At any point on the plane, प्लेन पे किसी भी एक पॉइंट पे, कौन सा प्लेन सर? हॉरिजॉन्टल प्लेन. हॉरिजॉन्टल प्लेन पे किसी पॉइंट पे, वो मुझे नहीं पता है, angle of elevation of the bottom and of the top of flag staff are 30 degree and 60 degree. मतलब ग्राउंड पे किसी पॉइंट से अगर आप उस फ्लैग स्टाफ के बॉटम को देख रहे हो, द एंगल इज 30 डिग्री, और अगर आप उस फ्लैग स्टाफ के टॉप को देख रहे हो तो द एंगल इज 60 डिग्री. अब मेरे को आपको हाइट, टावर की हाइट बतानी है. बता देते सिर्फ इसमें कौन सी बड़ी बात. चलो कैलकुलेट करते हैं. लेट अस कैलकुलेट. सबसे पहले तो भैया एक टावर बना दो और एक सबसे पहले we will make a tower और उसके बाद what we will do is we will make a flag staff. Flag staff को मैं कुछ इस तरीके से, this is the flag staff and this is the tower. This is height h and this is 5. Okay. अब यहाँ पे किसी पॉइंट पे आई एम स्टैंडिंग एट सम पॉइंट. यहां से देखो, द क्वेश्चन इज सेइंग द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड द टॉप आर 30 डिग्री एंड 60 डिग्री. अब बेटा यहां से जो है ना, गलतियों के चांसेस बढ़ते हैं. यहाँ पे आपको दे दिया था कि एंगल ऑफ एलिवेशन एंड ऑफ बॉटम एंड टॉप आर 30 डिग्री एंड 60 डिग्री. कई बार आपको नहीं देगा तो आप क्या कर सकते हो, सम ऑफ यू कैन मेक द मिस्टेक दैट आप इस एंगल को 60 डिग्री कर दो, आप इस वाले एंगल को 60 डिग्री बना दो और इस वाले एंगल को 30 डिग्री बना दो. ऐसी घातक गलतियां ना करें, विच इज वेरी वेरी डिफिकल्ट, वेरी वेरी डेंजरस. दूसरी चीज जो कॉमन मिस्टेक हम लोग करते हैं, हम क्या करते हैं, हम थोड़ा सा ज्यादा दिमाग लगाते हैं और हम क्या बोलते हैं कि सर ये वाला एंगल 30 डिग्री है. हाँ है.
ये वाला एंगल 60 डिग्री है, हाँ है, तो ये वाला एंगल जो होगा वो 30 डिग्री होता है। ठीक है सर, हो गया। अब आप क्या बोलोगे, जब जो गलती आप करोगे वो आप ये करोगे, सर ये एंगल 90 डिग्री होगा ना, तो 5 ये हो गया, और यहाँ से फिर अपन ये वाला डिस्टेंस निकाल देंगे, पता नहीं क्या क्या करेंगे, और फिर जो है वो गलत आंसर निकालेंगे। तो इस टाइप की घातक मिस्टेक्स आप लोग ना करें। डोंट डू सच टाइप ऑफ मिस्टेक्स इन योर एग्जाम। तो अब आपको करना क्या है, अब आपको जो करना है वो सुनो, ये तो वो था जो आपको नहीं करना, अब आपको जो करना है वो सुनो। डायग्राम बन गया, फिगर बन गई, अब करना कुछ नहीं, अब क्वेश्चन करना है। कई लोगों ने आंसर भी दे दिया है, जिन लोगों ने नहीं दिया है वो लोग सुन ले। जिन लोगों ने आंसर नहीं दिया है वो सुन लीजिए। दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज पी, लेट दिस इज सी, and I have to calculate this height h और bottom distance नहीं दिया, ठीक है। in triangle PBC h upon PB will be equal to tan 30। tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3, so PB will be equal to h multiplied by √3। ठीक है सर। अब हम बोलेंगे इन ट्रायंगल ABP, इन ट्रायंगल ABP, ABP ट्रायंगल में क्या होगा, दिस डिस्टेंस h plus 5 divided by this PB, PB कितना था h√3 will be equal to tan 60, यहाँ पे हम लोग tan 60 लेंगे, will be equal to tan 60। अब tan 60 और tan 30 की वैल्यू बेटा याद होनी चाहिए, नहीं याद होगी तो नहीं होगा, याद रखिएगा। So h plus 5 will be equal to h√3 multiplied by √3, which is equal to 3h। So अब क्या करेंगे, 3h में से h को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, दिस h when it will come left hand right hand side of the equation it will become minus h, so 3h minus h will be equal to 5, 2h will be equal to 5, h will be equal to 5/2। तो ये जो टावर था उस टावर की हाइट होगी 2.5 मीटर्स, तो हमें निकालना क्या था, टावर की हाइट निकालनी थी। So the height of the tower will be 2.5 meters and the total height will be 2.5 plus 5, which is equal to 7.5 meters। ठीक है, 30 meters। संजीता 30 meters क्या है बेटा? Okay, perhaps she has given me the distance from the tower। इसने शायद डिस्टेंस बताया है, but I think distance is not asked। I think distance is not asked, but बता दिया तो चलो कैलकुलेट कर लेते हैं। PB कितना था, h√3, PB was equal to h√3, h की वैल्यू कितनी है, ये 5.2, so this will be 2.5√3 and in no case it is going to be 30 meters। So I think you should calculate what you have given as answer is 30 meters। कुछ गड़बड़ है आपके प्रूफ में, प्लीज रेक्टिफाई वेयर इज द मिस्टेक एंड डू टेल मी कि कहां मिस्टेक है। सो करना कुछ नहीं था इस क्वेश्चन में, जैसे जैसे क्वेश्चन बोलता जा रहा है वैसे वैसे करते जाओ। कुछ कॉमन मिस्टेक्स होती है, उन कॉमन मिस्टेक्स को अवॉइड करो, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चन सॉल्व हो गया, मार्क्स दो, आगे बढ़ो। ठीक है, सो दिस इज हाउ दिस क्वेश्चन वाज टू बी सॉल्व। एक क्वेश्चन और करते हैं। ओके तो ठीक है, एक क्वेश्चन और करते हैं, करने की कोशिश करते हैं, और उसके बाद इस क्वेश्चन का आपको एक काम करो, जस्ट टेक द स्क्रीनशॉट एंड if the time doesn't permit I will just give you the hint। take the screenshot of the question। the angle of depression of the top and bottom of a 8-meter tall building from the top of a multi-storied building are 30 degree and 45 degree। find the height of the multi-story building and the distance between। बड़ा आसान सा क्वेश्चन है दोस्त। देखो
एक बिल्डिंग है यहाँ पे, दिस इज अ मल्टी स्टोरी बिल्डिंग, इसकी हाइट मुझे नहीं पता, ये हमारा बुर्ज खलीफा है। और ये जो है बुर्ज खलीफा के बगल में एक छोटी सी बिल्डिंग है कोई, ये एक बिल्डिंग, और ये जो है यहाँ पे ग्राउंड। नाउ द क्वेश्चन इज सेइंग द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड बॉटम, ये हाइट मेरे को 8 मीटर्स दी हुई है, एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड बॉटम, दैट इज माय डियर फ्रेंड्स, एक तो एंगल ये वाला एंगल जो है ये 30 डिग्री है, ठीक है। चाहो तो इस डायग्राम को थोड़ा सा और सुंदर बनाने के लिए इसको ऐसे लाइन बना दो, और ये वाला जो एंगल है, ये वाला एंगल 45 डिग्री। देयर इज सम मिस्टेक, ये वाला एंगल था आपका 30 डिग्री, और ये वाला जो एंगल था ये था आपका 45। So by using the concept of parallel lines that I just told you, so this angle will be 30 degree and this angle will be 45 degree. Why I said there was that there is some mistake here, क्योंकि जो अपन ने previous फिगर बनाया था उसमें 30 डिग्री जो था वो 45 डिग्री से ज्यादा है, दिस इज प्रैक्टिकली नॉट। और एंगल ऑफ एलिवेशन जो अपन मेजर करते हैं, वो जो लाइन जो पैरेलल लाइन टू द बेस होती है, उससे अपन एंगल ऑफ एलिवेशन वी मेजर द एंगल ऑफ एलिवेशन लाइक दिस, नॉट लाइक दिस। टावर से आप एंगल ऑफ एलिवेशन को नहीं, टावर से आप एंगल ऑफ डिप्रेशन को नहीं मेजर करोगे, आप ग्राउंड के पैरेलल जो लाइन है उससे आप एंगल ऑफ डिप्रेशन को मेजर करोगे। दिस इज अ कॉमन मिस्टेक दैट, सो नाउ दिस एंगल इज 30 डिग्री, उससे आपके क्वेश्चन में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्वेश्चन का आपका आंसर आएगा नहीं, बट दिस इज व्हाट द कंसेप्चुअल मिस्टेक, ठीक है। सो दिस एंगल इज 30 डिग्री, दिस हाइट इज 8, और आपको इस मल्टी स्टोरी बिल्डिंग की हाइट बतानी है और इन दोनों बिल्डिंग के बीच की दूरी बतानी है, ठीक है सर, बता देते हैं। अब देखो tan 45 1 होता है, पता है ना सर, tan 45 इज इक्वल टू 1। अगर ये वाला ट्रायंगल है ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC tan 45 will be equal to AB upon BC। अगर ये टोटल हाइट h है तो ये वाली हाइट भी h हो जाए, और अगर दिस इज AE, so AE will be equal to h minus 8। ये जो AE है this is equal to h minus 8। Now what I will have, h minus 8 upon h will be equal to tan 30 which is equal to 1 upon root 3। यहाँ से h की वैल्यू कैलकुलेट कर लो, एक बार h की वैल्यू आ जाएगी तो डिस्टेंस भी आ जाएगा एंड द टोटल हाइट भी आ जाएगा, तो वहां से डिस्टेंस भी आ जाएगा एंड टोटल हाइट भी आ जाएगा। So यहाँ से you will get the distance also, and here from here you will get the height also. So this is how you are supposed to solve this question. एक बार इस क्वेश्चन को ट्राई करना, नहीं सॉल्व होता है तो we will start from